Hey, class 10th, the last video we are talking about the parts of alimentary canal digestive system. You are already clear with it, I hope so. Today we'll start the exact procedure of nutrition. Okay? Nutrition, you know, it have 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. So, first know about ingestion. Okay? Where does the ingestion takes place? Ingestion takes place through mouth. खाना हम माउथ से खाते हैं. इंजेक्शन इज और द फूड इज इंजेस्टेड बाय माउथ. क्लियर. सेकेंड आता है डाइजेशन. ओके, डाइजेशन कहाँ होता है? डाइजेशन 3 जगह होता है. पहला में होता है माउथ, दूसरा होता है स्टोमक में, तीसरा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. क्लियर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द 3 पार्ट्स ऑफ आवर एलिमेंट्री canal. Clear. First thing, in mouth. Okay, in mouth, what happens with mouth? We have teeth here. The teeth grinds the food. Okay, so it will help in physical digestion. First thing, in mouth, the teeth grinds the food, so we can tell that physical digestion takes place in mouth by the help of teeth. Second, the mouth also contains salivary glands. Okay, mouth also contains salivary glands. The salivary gland produces saliva. The saliva contains a special kind of enzyme called as salivary amylase. Okay, salivary amylase. Clear. This salivary amylase enzyme, okay, this will help you to digest the starch. Clear. समझ में आ रहा है? दिस हेल्प्स यू टू डाइजेस्ट द स्टार्च. दैट मीन्स इट इज हेल्पिंग फॉर केमिकल डाइजेशन. क्लियर. सो माउथ इज ए स्पॉट और अ पार्ट where physical digestion as well as chemical digestion takes place. Physical digestion is it undergoes by the help of teeth, and the chemical digestion undergoes by the help of saliva or salivary amylase. The saliva has also other functions, like saliva contains one more enzyme called lysozyme. I have told you it kills the germs in the food. One more thing, the saliva makes the food wet, due to which digestion is very easy, or sometimes chewing becomes very easy. Okay. Okay, now the food is slightly digested. Slightly digested food, I can tell it, because it is physically broken down, and chemically it has been digested small amount, though smaller amount, but it is digested. Okay, so I can tell it as slightly digested food. Now this slightly digested food, it goes into the oesophagus. Okay, ये माउथ में था, माउथ से चला गया कहाँ? ओइसोफेगस में. क्लियर. सो इन ओइसोफेगस इट विल रन डाउनवर्ड्स ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड रीच स्टोमक. स्टोमक पहुंच जाता है. क्लियर. ओइसोफेगस व्हाट? नॉट ओनली ओइसोफेगस, peristaltic movement takes place in the whole what I could say alimentary canal. Okay, so here in oesophagus also peristaltic movement takes place and the food goes downwards. Clear. Okay, so in stomach this food is broken down into smaller particles and it forms a semi solid paste. Okay, the food is totally, means it is broken down into very small particles and it forms a semi solid paste. Clear. Okay, now gastric cells are there. We know that in stomach, I have told you, gastric cells or peptic cells, whatever you can tell. Okay, so these gastric cells, what they will do, they contain 3 things. They contain HCl, they contain pepsin, and they contain mucus. Okay, 3 of the first thing, HCl act upon this solid semi-solid food paste. Okay, the HCl, what it does, it kills the bacteria. Clear. It kills the bacteria present in the semi-solid paste. Second thing, it provides the acidic medium so that pepsin can work actively. Clear. It kills the bacteria and also maintains the acidic medium so that pepsin can work easily. If the pepsin works,
whatever protein is present in this paste, okay, जितना भी प्रोटीन है, okay, वो कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड्स में। एमिनो एसिड्स में किसके मदद से? पेप्सिन के मदद से। क्लियर? सब देखो इंटरकनेक्टेड है। HCl के एसिडिक मीडियम की वजह से पेप्सिन एक्टिव होता है और ये पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? बाकी जो बच्चे म्यूकस है, HCl का जो एसिडिक pH है, हार्मफुल नेचर है, उस चीज से स्टोमक के लाइनिंग को बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl। क्लियर? नाउ इसका प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, तो अब मैं इस फूड को क्या बोलूंगा? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। ओके, देखो माउथ में घुसने से पहले था ये नॉर्मल फूड, जब माउथ में गया, माउथ से निकल रहा था, तो इसको हो गया, ये बन गया स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड। अब जब उसका सिर्फ स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था, उसका जो प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ यहाँ पे, उसको हम इसलिए बोल दिए पार्शली डाइजेस्टेड फूड। देखो डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, धीरे धीरे डाइजेशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, इसीलिए मैं इसको उस तरह से नाम दे रहा हूँ। इट इज नाउ कॉल्ड एज पार्शली डाइजेस्टेड फूड। रिमेंबर, सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट्स यानी स्टार्च और सारा का सारा प्रोटीन अब तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है, कुछ अमाउंट बच गया होता है। तो अब ये क्या होगा? ये जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है, ये स्टोमक से जाएगा इंटेस्टाइन। ओके, स्टोमक से जाएगा इंटेस्टाइन। याद रहे, फ्रॉम स्टोमक इट गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्टोमक से इंटेस्टाइन जाने के लिए बीच में एक मसल हेल्प करता है इसको पुश करने के, दैट इज कॉल्ड एज स्पिंक्चर मसल। गैस्ट्रिक स्पिंक्चर मसल, एक्चुअली स्पिंक्चर मसल, इसका एक्चुअल नाम है गैस्ट्रिक स्पिंक्चर मसल, क्योंकि स्पिंक्चर मसल 3 या 4 तो है, 3 है। ओके, तो स्टोमक और तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच को बोलता है गैस्ट्रिक स्पिंक्चर मसल। सिंपल नेम, में और भी नेम है इसका। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन गया। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन, जितना बचा कुचा चीज है सब यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। जो थोड़ा सा स्टार्च बचा है डाइजेस्ट होने के लिए वो हो जाएगा, जो थोड़ा प्रोटीन बचा है वो हो जाएगा, और जो पूरा फैट्स बचा है वो भी यहीं पे डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डाइजेशन कैसे परफॉर्म करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन परफॉर्म्स कंप्लीट डाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ द सीक्रेशंस, by the help of the secretions that it gets from liver and pancreas। क्लियर? लिवर से और पैनक्रियाज से जो भी सिक्रेशन मिलेगा उसकी बदौलत ये कंप्लीट डाइजेशन कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाता। लिवर से क्या मिलता है? लिवर से हमको मिलता है बाइल जूस। लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस। ओके, क्लियर? बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या है? जो एसिडिक फूड आया है स्टोमक से, उसको पहले अल्कलाइन करना। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? जो एसिडिक फूड आया है उसको पहले अल्कलाइन कर देगा, ताकि पैनक्रियाटिक जूस इस पे काम कर पाए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। क्लियर? इसका 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि ये फूड को, अच्छा पहला फंक्शन ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है। ठीक है, बाइल जूस का पहला फंक्शन क्या है? इट इमल्सिफाई द फैट, इमल्सिफाई द फैट्स को इमल्सिफाई करता है, यानी थोड़ा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दूसरा, जो एसिडिक फूड है उसको अल्कालाइन करता है, अल्कालाइन। क्लियर? हमको पता है कि बाइल जूस अल्कालाइन नेचर है, सो इट कन्वर्ट्स द एसिडिक फूड मीडियम इनटू अल्कालाइन सो दैट पैनक्रियाटिक जूस विल एक्ट अपॉन इट। समझ में आया? बाइल जूस का फंक्शन क्या है? लिवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस फंक्शन इज टू एमल्सिफाई द फैट एंड टू कन्वर्ट द एसिडिक मीडियम ऑफ द फूड दैट केम फ्रॉम स्टमक इनटू अल्कालाइन। एसिडिक मीडियम को अल्कालाइन कर देगा ताकि पैनक्रियाटिक जूस या एंजाइम्स उस पे एक्ट कर सके। पैनक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है? ये पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, जिसमें 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक होता है एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज। याद रखोगे, इसको खाली एमाइलेज नहीं लिखोगे, क्योंकि एमाइलेज तो माउथ में भी होता है। क्लियर? सो यू नीड टू व्हाट मेक इट अप्रोप्रिएट दैट इज salivary amylase and this is pancreatic amylase। so पहला वाला ये है amylase, ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ग्लूकोज बनाता है। ओके, दूसरा है तुम्हारा ट्रिप्सिन,
ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। तीसरा है लाइपेज, जो इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करता है। क्लियर? यहाँ पे सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए हम मानते हैं दिस इज द कंप्लीटली दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, मीन्स द फूड इज नाउ कंप्लीटली डाइजेस्टेड। क्लियर? अभी इसके बाद जो रहेगा ना, देखो यहाँ से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, तो खाना हम क्या बोलेंगे? कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड, हम इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले तुम क्या बोल रहे थे? इसको स्लाइटली डाइजेस्टेड, थोड़ा डाइजेस्ट हुआ था, फिर आधा डाइजेस्ट हो गया तो पार्शली बोले, अब पूरा डाइजेस्ट हो गया, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? डाइजेशन कैसा हुआ? पहला पार्ट क्या था? इंजेक्शन माउथ से किए, डाइजेशन 3 पार्ट से किए। देखो, इंजेक्शन माउथ से किए, डाइजेशन 3 पार्ट में हुआ, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे स्लाइटली डाइजेस्ट हुआ, यहाँ पे पार्शली हुआ, यहाँ पे कंप्लीटली हुआ। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, लेट्स मूव टू एब्जॉर्प्शन। ओके, थर्ड पार्ट एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करने के लिए इंटेस्टाइन हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बोथ ऑफ देम। ओके, आफ्टर डाइजेशन द completely digested food passes through the wall of small intestine and what large intestine. Clear? तो देख लो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स सब डाइजेस्ट होगा। ओके, क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? nutrients is digested, nutrients is absorbed, sorry, from the intestinal wall to what, your blood stream, intestine से blood stream तक ये ट्रांसफर होगा। क्लियर? न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब होगा? डाइजेस्टेड फूड से। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, whereas large intestine absorbs salts and water from undigested food. Clear? Undigested food. Clear? Getting my point? Absorption खत्म, अब आते हैं assimilation की तरफ। What do you mean by assimilation? You know that simply the absorbed nutrients are to be used in the body. That is called as assimilation. So now the absorbed nutrients are present in the blood. अब blood में है वो लोग, so the blood carries the nutrients to the cells where energy is produced. ये blood और nutrients को कहाँ लेके जाएगा? सेल के पास लेके जाएगा, ताकि वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए। लास्ट को बचता है इजेक्शन। जितना अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना है इन द फॉर्म ऑफ फेसिस और स्टूल। वी कॉल इट एज फेसिस और स्टूल और बाउल। क्लियर? सो ये कैसे निकालेंगे? थ्रू द हेल्प ऑफ एनस। एनस से निकल जाएगा ये। समझ में आया? ये स्टूल थोड़ी देर तक रेक्टम में स्टोर होकर रहता है, उसके बाद व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड यू एक्सक्रीट इट। क्लियर? डन? समझ में आया? इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन। क्लियर है पूरा? प्रोसीजर, कौन सा पार्ट क्या परफॉर्म करता है, कैसे परफॉर्म करता है, पहले कौन करता है, बाद में कौन करता है। क्लियर? गेट थ्रू इट प्रॉपर्ली। क्लियर? Now let's move to the last topic of this nutrition, that is dental caries. Dental caries. Okay, before going on dental caries you must know about the structure of teeth. 1 second. Here you have, okay, you can see there are 3 layers of teeth: enamel, dentine एंड पल्प। ओके, ये एनामेल है, ये डेंटाइन है और ये पल्प है। क्लियर? दिख रहा है? एनामेल, डेंटाइन, पल्प। एनामेल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट, हार्डर देन द बोन्स ऑल्सो। क्लियर? ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट कॉल्ड इज एनामेल। सेकेंड लेयर तुम्हारा डेंटाइन का है, ये सिर्फ कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना है, सिंपल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ओके, क्लियर? उसके बाद देखो दिस एरिया इज कॉल्ड एज पल्प। ये पल्प है तुम्हारा। ओके, यहाँ पे नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं एंड दिस पार्ट इज वेरी वेरी सेंसिटिव। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये पार्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है।
Clear? Okay. So whenever you eat some food, mainly sugar food, it sticks to your teeth. Teeth में सब चिपक जाएगा. And if you are not cleaning it up properly, the bacteria will feed upon it. They will start eating it and they will produce some acid. This acid may damage this enamel layer. एक बार एनामेल लेयर डैमेज हो गया तो डेंटाइन भी डैमेज हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे. अगर डेंटाइन डैमेज हो गया, ओके ये लेयर सॉरी, एनामेल अगर डैमेज हुआ तो उसका डेंटाइन डैमेज होगा. डेंटाइन अगर डैमेज हो गया तो सारा प्रेशर ये क्या करेगा, गड्ढा बना देगा, पिट बना देगा. यहाँ देखो एनामेल खराब हो चुका, ये डेंटाइन खराब हो रहा है, ये डेंटाइन है ये वाला, ये भी अगर खराब हो गया ना तो ये पल्प पे इफेक्ट करेगा. पल्प पे जब प्रेशर गिरेगा दिस विल कॉज अ सीवियर पेन. समझ में आ रहा है? जो हमको सेंसिटिविटी और पेन फील होता है ना वो इसी वजह से होता है. इफ वी आर ईटिंग शुगरी फूड एंड वी आर नॉट क्लीनिंग इट प्रॉपरली, then bacteria will act upon that food and produce some acid. This acid may damage the enamel layer, slowly it may damage the dentine layer, then it may pressurize the pulp layer. Okay, pulp layer. This will cause severe pain. Okay, this is called as actually tooth decay. One more thing, the actual color of your teeth is not white, not milky white, it is slightly yellowish and dull. चमकता हुआ दांत हेल्दी नहीं होता, याद रहे. मतलब एक्चुअल कलर होता है स्लाइटली डल वाइट रहता है, तो ये सही हेल्दी टीथ है एक्चुअली. ओके, बाकी हम तो यूज़ करते हैं बहुत सारा टूथपेस्ट विजिबल वाइट ये वो ताकि साफ रहे चमके. ठीक है, यू शुड डू इट, बट इन दैट केस यू शुड नॉट यूज मोर केमिकल्स टू मेक योर टीथ वीक. ओके, वन मोर थिंग, इफ यू आर नॉट क्लीनिंग योर टीथ, your teeth will have your teeth will have a yellowish layer over it. Okay, चिपचिपा दिखेगा, yellowish layer जम जाता है. क्यों जमता है? बिकॉज ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड बिकॉज ऑफ बैक्टीरियाज ऑल्सो. ये बैक्टीरियाज और फूड पार्टिकल्स मिलके वहाँ रहते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज डेंटल प्लेग. इसको हम बोलेंगे डेंटल प्लेग. क्लियर? समझ में आ रहा है? ये देखो डेंटल कैरीज कैसे हुआ है, गड्ढा हो गया है पूरा. क्लियर? टूथ डिके डेंटल कैरीज का ये एग्जाम्पल है. सो न्यूट्रिशन का पार्ट तो खत्म. गो थ्रू इट प्रॉपरली. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम डू टेल मी. थोड़ा स्पीड अप करो, थोड़ा तेज जाओ. वी हैव टू गो फॉर मोर टॉपिक्स ऑल्सो. बहुत सारा और टॉपिक बाकी है. रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स में, एनिमल्स में बहुत ज़रूरी है पढ़ना. टाइम लगेगा ये चैप्टर. सो तुम जल्दी चलोगे तो मैं थोड़ा तेज़ कर पाऊँगा. Okay, then have a good day.